येस. सो लास्ट लेक्चरला आपण कितपर्यंत बघितलं होतं? सॉल्ट इफेक्ट आपण बघत होतो, प्रायमरी सॉल्ट इफेक्ट आणि सेकंडरी सॉल्ट इफेक्ट. ओके, सो आपण इथपर्यंत आलो होतो. येस, ब्रॉन्स्टेड बर्जरम इक्वेशन आपण बघत होतो आणि वी आर अप टू दी प्रायमरी सॉल्ट इफेक्ट. ओके, प्रायमरी सॉल्ट इफेक्ट आपलं झालं होता का? येस, प्रायमरी सॉल्ट इफेक्ट आपला झाला होता. राईट नाव वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंडरी सॉल्ट इफेक्ट. ओके, सो सेकंडरी सॉल्ट इफेक्ट काय असतो आता आपण तो या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. येस, सो सी the secondary salt effect is mainly we can say that is involve a catalytic reaction. Okay, so see in a secondary salt effect we have a catalytic reaction. Yes, effect is involved in a catalytic reaction. Catalytic reaction यामध्ये असणार आहे. So it can be studied by changing the actual concentration of the catalytic active ions. Okay, so we have to change the concentration of a catalytically active ions. Okay, simply we have to change the concentration of catalytically active ions if they are reduced by a strong acid or a strong base. Okay, so here we can say strong acid. Okay, so the example of strong acid are the HCl, H2SO4, okay, or strong base. So we simply say that the example of strong base, that is a NaOH and KOH. Okay, see the secondary salt effect is a negligible. Yes, see if these are reduced by the strong acid or a strong base. Yes, strong acid और strong base के साथ यदि हम लोग इसे reduce करते हैं, so it will be a secondary salt effect is a negligible. तो secondary salt effect है वो क्या हो जाएगा? negligible हो जाएगा. So it is simply it is a negligible. This effect become important if the ions are produced by the dissociation of a weak electrolyte. Okay, क्या कहा गया है देखो यहाँ पे. So here we are simply say that this effect become important if the ions are produced by dissociation of weak electrolyte. Okay, weak electrolyte जो है dissociate होगा. Okay, so see, consider the catalytic effect of hydrogen ions which are produced by the mixture of a weak acid and its salt at a definite concentration. Okay, so here we have the example Ha plus H2A, we get a H3O plus O A minus. Yes, the equilibrium or the hydrolysis constant K for the reaction is given by Ha is equal to a reaction H2O H3O A minus, H3O A minus. H3HA plus H2O give us a H3O plus A minus. Yes, so simply we have to write here equation. Okay, so rate equation we have to write here Ka is equal to concentration of is equal to H3O and A minus, alpha A minus divided by concentration of alpha HA. Okay, or we can simply write K is equal to C H3O plus, that means the concentration of H3O plus C. The concentration of this is the reversible reaction. Here we have reactant and here we have the product. If you are considering the forward reaction, okay, forward reaction के लिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे reactant है और यहाँ पे product है. लेकिन यही हम लोग backward reaction के लिए यदि consider करते, so same way here is a reactant and here is a product. Okay, so see here we have the
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एज वेल. ओके, क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी रहने वाला है और बैकवर्ड भी रहने वाला है. सो सिंपली वी कैन राइट हियर द एक्सप्रेशन दैट इज द K इज इक्वल टू C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन into the concentration of A minus ion divided by concentration of HA ion, okay, multiply by FH3O plus FA minus FHA. okay, that is the alpha is equal to FC. अल्फ़ा क्या जो है यहाँ पे हमने अल्फ़ा लिखा था ना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू FC. अल्फ़ा इज इक्वल टू FC. so simple we can write here, we know that the pH, yes here we know that the pH of a mixture, ये भी जो भी उसका pH रहेगा of a weak acid and its salt is a constant composition is given by. okay, so here we have the formula, ये constant रहने वाला है. so we have the formula pH is equal to Ka into concentration of HA divided by concentration of A minus. okay, so which is equal to constant and which we can write here K. क्या लिखेंगे हम लोग, K लिखेंगे. तो सी द इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं. instead of writing this all, we are directly written here concentration of H3O plus K into FHA divided by K into H3O plus and FA minus. okay, so here we get, देखो क्या मिल रहा है हमें, एज here as the activity term varies with the ionic strength of the medium, it follows that hydrogen ion concentration and its catalytic activity will also change with the ionic strength of medium. क्या होगा, will also change with the ionic strength of a medium. This is known as the secondary salt effect. This is known as the secondary salt effect. This is known as the secondary salt effect. okay, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, secondary salt effect. okay, see here as the activity term varies with the ionic strength. ionic strength के साथ ये activity term vary कर रहा है of the medium, it followed that hydrogen ion concentration and its catalytic activity will also change with the ionic strength of the medium. okay, will also change with the ionic strength of medium. ionic strength जैसे medium का change होगा वैसे वो भी क्या हो जाएगा, change हो जाएगा. yes, and we call them as a secondary salt effect. okay, तो क्या इसे कहेंगे हम लोग, secondary salt effect कहेंगे. क्या कहेंगे, secondary salt effect. okay, so see हमें salt effect में क्या क्या देखना है, तो एक primary salt effect रहता है, ओके और ये सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट हमने देखा. यस, और जो तीसरा रहने वाला है अभी वो काइनेटिक्स आइसोटॉप इफेक्ट. यस, या फिर इसे आप KI भी बोल सकते हैं, KI, दैट इज अ काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट. क्या बोल सकते हैं इसको, काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट भी बोल सकते हैं. ओके, सी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द प्राइमरी सॉल्ट, नोट्स ऑन द प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट और सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट और द काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट. ओके, सो यू हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंगली. यस, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली उसके जो क्वेश्चन पूछा गया है वो. यस, सी हियर द नेक्स्ट वन इज द काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट. यस, लेट मी कंफर्म दैट आवाज़ आ रहा है प्रॉपरली. Yes, give the reply. Yes sir. Okay. Yes, presentation भी properly दिख रहा है. Yes sir. Okay, ठीक है. Yes, we are going to continue this topic and discuss about the exam planning or the study planning. Okay, after the completion of this topic. Okay, see. So here we are directly go to the our presentation. Yes, see here. The phenomenon known as the kinetic isotopic effect, that is the KIE, is brought on by the variable reaction speed. okay, तो ये कैसे मिला हमें, brought on by the variable reaction speed से साथ. yes, that are displayed by the isotopically substituted compound, that are displayed by the isotopically substituted compound. When it's come to studying the reaction kinetics, mechanism and the solvent effect, isotope effect like KIEs are invaluable tools both in the physical and the biological science. yes, here ये फिजिकल में भी काम आता है, फिजिकल साइंस में भी और बायोलॉजिकल साइंस में भी ये काम आता है.
Kinetic isotopic effect specifically explore the change in the rate of the reaction due to the isotopic substitution. Okay, तो यहाँ पे क्या कहा गया है देखो, kinetic isotopic effect especially explore the change in the rate of a reaction due to the isotopic substitution. Okay, तो सी यहाँ पे दिया है पूरा, या अपना ये द x is the element. Okay, here is the a is the mass number and z is the atomic number. सी है z जो है इसे हम लोग एटॉमिक नंबर बताते और एक को हम लोग मास नंबर बताते एंड x इज द एलिमेंट. ओके, एलिमेंट सिंबल क्या रहेगा, एलिमेंट सिंबल रहेगा. ओके, यस, सी द सिंबल, मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑल सर्व एज अ इंडिकेटर ऑफ एन एलिमेंट. यस, तो ये सब क्या एलिमेंट के इंडिकेटर है. ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन है, हेलियम है. ओके, तो हेलियम को हम लोग लिखते हैं 2 and 4. यस, हाइड्रोजन को लिखते हैं 1 and 1, ऐसे लिखते ना, लाइक दैट. तो सी द मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, whereas the atomic number is the quantity of a proton in the nucleus. Two atoms of the same element have a different number of a neutron. Yes, यहाँ फिर ऐसे भी कहा गया है देखो, they have the different number of electron. इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट नंबर भी यहाँ पे हो सकता है. Yes, differing number of neutrons but the same number of proton are called isotopes. Okay, see, two atoms of the same element have the differing number of neutron. Okay, मतलब देखो दो एटम है सेम एलिमेंट के, have a different number of neutron but the same number of proton. प्रोटॉन क्या है, सेम नंबर है, are called isotopes. तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, आइसोटॉप कहेंगे. So we call them as a isotope. The mass number identified the isotope. Okay, मास नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, द मास नंबर आइडेंटिफाइड द आइसोटॉप. आइसोटॉप का हम लोग पता कर सकते हैं. द मास नंबर फाइंडिंग आउट द आइसोटॉप्स. यस, मास नंबर आइडेंटिफाइड द आइसोटॉप. राहू दे. Yes, see the next one, consider the two form of a chlorine. क्लोरीन दिया हुआ है देखो, क्लोरीन. यस, क्या है क्लोरीन, नॉर्मल. यदि इफ़ यू आर कंसिडरिंग क्लोरीन, तो क्लोरीन इज द 35. यस, एंड क्लोरीन इज द 37. ओके, देयर आर द टू form of the chlorines are given here. So simply we can say that chlorine have atomic number 17 and 17. Okay, but they have a different, yes, that is a mass number. Okay, so these are the isotopes. Okay, these are the isotopes of chlorine. Yes, so see here, consider the two form of chlorine, that is the chlorine 35 and the chlorine 37 as an illustration. Although their atomic numbers are the 17, you can see that their mass number will different with the 2 units. Okay, see, their mass number will be different with the 2 units. 2 units के साथ उसका mass number क्या है, different है. Okay, simply here we have a 35 and here we have a 37. Yes, so you can see that their mass number differ with the 2 units. क्या है, 2 यूनिट के साथ यहाँ पे डिफरेंस उसका मास नंबर हमें मिल रहा है. ओके, सी है, आगे क्या कहा गया है, द काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट विच आर फ्रिक्वेंटली मेजर यूजिंग द NMR, दैट इज अ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, to identify the isotope location of or GCMS. Okay, GCMS का मतलब होता है गैस क्रोमेटोग्राफी. Yes, and the mass spectroscopy. Okay, that is a GCMS, gas chromatography or a mass spectroscopy, to detect the mass changes are used to determine the reaction proceeded by determining the rate limiting stages and the transition states. In KIE, that is the kinetic isotopic effect experiment, an atom isotope is substituted for the original atom. क्या होगा, एटम का जो आइसोटॉप है, यस, इज अ सब्सटीट्यूटेड फॉर ओरिजिनल एटम. ओरिजिनल एटम के लिए क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा. एंड द रिएक्शन रेट इज देन मॉनिटर. और क्या करना है, रिएक्शन रेट को मॉनिटर करना है. Yes, the replacement of hydrogen with a deuterium
इज अ हाईली फ्रिक्वेंट आइसोटॉप सब्स्टिट्यूशन। क्या कहा गया है, देखो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करेगा ड्यूटेरियम को, इट्स अ हाईली फ्रिक्वेंट आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, हाईली फ्रिक्वेंट आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन है। ओके, द रेशियो KH/KD which describe that deuterium effect, yes, see here KH/KD, yes, see here hydrogen, it is a constant for hydrogen and it is a constant for deuterium। ड्यूटेरियम के लिए कांस्टेंट हम लोग क्या लिखेंगे, KD, और हाइड्रोजन के लिए कांस्टेंट क्या लिखेंगे हम लोग, KH लिखेंगे। विच डिस्क्राइब दिस एज अ ड्यूटेरियम इफेक्ट। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूटेरियम इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्यूटेरियम इफेक्ट। इट इज़ यूज टू मेजर इट एज एक्सप्लेन अबव। यस, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। KI, that is kinetic isotopic effects for the deuterium impact typically range from 1 to 7 or 8। ओके, यस, तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इम्पैक्ट उसका क्या रहने वाला है, 1 to 7 और 8, 1 से 7 तक या फिर 8 रहेगा। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस परसेंटेज मास वेरिएशन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑब्जर्व। क्या कहा गया है, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑब्जर्व। See next one, effect of heavy elements, isotope substitution, effect of heavy element isotope substitution on the carbon, oxygen, nitrogen, sulfur and the bromine are substantially smaller and typically range from 1.02 to 1.10। yes, देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, ये जो भी रेंज है इसका 1.02 से लेके 1.10 तक रहेगा। The percentage change in the mass is directly correlated with the difference in the KIE magnitude, that is a kinetic isotopic, yes, what is the meaning of E, effect magnitude, yes, smaller percentage mass changes occur when an atom like sulfur is replaced with its isotope। okay, तो क्या सल्फर जो है इसे हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ इट्स आइसोटॉप से, उसके आइसोटॉप से। हाउएवर द लार्जर इम्पैक्ट आर ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस विद अ ड्यूटेरियम। ओके, हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ड्यूटेरियम को, ड्यूटेरियम के साथ। तो हम लोग क्या कहेंगे, सो वी हैव लार्जर इम्पैक्ट। यस, सिंस द परसेंटेज मास चेंज इज अ क्वाइट बिग, मास इज बीइंग डबल्ड। ओके, सी क्या कहा गया है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज जो है, यस, परसेंटेज मास चेंज इज अ क्वाइट बिग। क्वाइट बिग मतलब क्या, थोड़ा बड़ा होने की वजह से मास इज बीइंग डबल, इंक्रीज बाय 2 मास यूनिट। ओके, तो ये क्या है, 2 मास यूनिट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाय 2 मास यूनिट। ओके, 2 मास यूनिट के साथ ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, ये क्या कहा गया है यहाँ पे, ये काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे जो हमें इफेक्ट थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। पहला था हमारा प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। ओके, सी हमने क्या क्या देखा अभी तक, यस, सी यहाँ से हमने शुरुआत की थी ब्रॉन्स्टेड-बर्ज़ेलियस इक्वेशन, इसमें हमने प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट देखा था। देन आज के लेक्चर में हमने सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट क्या है उसे देखा। यस, देन काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या है इसे देखा। ओके, तो ये 3 इफेक्ट हमने आज के लेक्चर में देखे, एक्चुअली 2 इफेक्ट देखे। यस, सो नेक्स्ट वन इज द पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस। आपको देखो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा हमारे पास तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एक स्पेशल लेक्चर लेके उनको भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या क्या थे। ओके, सी पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस। सो understanding the potential energy surfaces is essential for comprehending the causes and the mechanism of isotopic effect। okay, जो भी mechanism of isotopic effect है वो हमें यहाँ पे देखना है। The oscillations of a diatomic molecule are explained using the harmonic oscillator approximation। क्या यूज़ करेंगे हम लोग, harmonic oscillator approximation। yes, the energies from the harmonic oscillator quantum theory solution
aid in defining the internuclear potential energy of a diatomic molecule. And R En is equal to क्या दिया है देखो यहाँ पे En is equal to n plus half h mu. En is equal to n plus half h mu. En is equal to n plus half h mu. ओके, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और इसका वैल्यू रहेगा 1, 2 और 3. यस, h को हम लोग कहेंगे प्लैंक कांस्टेंट. यस, एंड म्यू पे हम लोग कहेंगे इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. ओके, तो देखो यहाँ पे en दिया है, n इज द पॉजिटिव इंटीजर, हाफ h मतलब प्लैंक कांस्टेंट है एंड म्यू मतलब क्या, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी. ओके, so here we can say that the intermolecular potential energy curve can be approximately analytically using the Morse potential. Okay, so this is the equation. इसे आपको ध्यान में रखना है, that is the Morse potential. क्या ये Morse potential है, Morse potential का ये equation है. Yes, so the equation VL is equal to DE 1 minus e raised to minus beta L minus L0 square. Let's see the equation VL is equal to DE 1 minus e raised to minus beta L minus L0, yes, and its square. Okay, so where V is the potential energy. See, VL is the potential energy. VL को हम लोग क्या बोलेंगे, VL is the potential energy. ये वाला potential energy है. DE is the dissociation energy of the molecule. DE क्या है, dissociation energy of a molecule. Beta is the measure of a curvature of the potential at its minimum. L is displacement. यस, एल जो है इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे एंड L0 इज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ. यस, क्या है वो, L0 इज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ. L0 इज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ. ओके, सो द DE बीटा B बीटा बीटा and L0 variables can be looked up in the table. Okay, see, okay, we are directly move toward the diagram. See here we have the diagram, the potential energy curve. See, the graph is going to be like that. Okay, यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, ELPM. ओके, यहाँ पे V दिया है, एल में VL दिया है. ओके, सी देखते हैं इसे क्या है ये. सो when we are talking about this topic, so here we are directly comes to this point. Okay, the 0 point vibrational energies of a two isotopic compounds such as RH. Yes, RH for hydrogen, yes, and RD for deuterium. RH दिया हुआ है वो हाइड्रोजन के लिए दिया है, yes, and this is for deuterium. Yes, see, where R is the group or atom that is significantly heavier than hydrogen or D. Yes, मिस R जो है क्या रहने वाला है, ग्रुप ऑफ एटम रहने वाला है, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन वो क्या है, हेवियर दैन दी हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, इससे ज़्यादा हेवी रहने चाहिए. आर यूज टू क्रिएट एन एग्जाम्पल ऑफ मोर्स पोटेंशियल कर्व बिलो. सी, ये क्या दे रहे हैं देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑन द वाई एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लेंगे एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज ऑन द एक्स एक्सिस. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो रहेंगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे. यस, द 0 point energies of the deuterium and the hydrogen are represented in the figure ED0 से और EH0 से. ओके, 0 point एनर्जी ओके 0 point एनर्जी क्या रहते हैं, इट इज अ मिनिमम एनर्जी.
ओके, तो जो 0 पॉइंट एनर्जी इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी रहती है वो। यस, सी रिस्पेक्टिवली द 0 पॉइंट एनर्जी ऑल्सो नोन एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इट्स अ सिस्टम लोवेस्ट अटेनेबल एनर्जी। ओके, क्या बोलेंगे इसे हम लोग 0 पॉइंट एनर्जी को, सो इट इज़ अ ऑल्सो नोन एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी बोलेंगे उसको। यस, और इट्स द सिस्टम लोवेस्ट अटेनेबल एनर्जी, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी। क्या ये मिनिमम एनर्जी, उसमें सिस्टम अटेन हो रहा है। यस, द रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिकुलर इफेक्ट द रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल अफेक्ट 0 पॉइंट एनर्जी। ओके, रिड्यूस मास, तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला पता है हमें, म्यू से हम लोग शो करते हैं रिड्यूस मास। ओके, रिड्यूस मास हम लोग किससे शो करते हैं, तो वी कैन शो द रिड्यूस मास बाय म्यू से हम लोग इसे शो करते हैं। ओके, यस, द रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूलर इफेक्ट 0 पॉइंट एनर्जी एज विल डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग सेशन। द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी एंड द 0 पॉइंट एनर्जी डिक्रीजेस हियर। ये जो ग्राफ दिया हुआ इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड द 0 पॉइंट एनर्जी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर और एटॉमिक मास। क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर और एटॉमिक मास। ओके, दैट इज द 0 पॉइंट एनर्जी डिक्रीज, क्या होगी, वो डिक्रीज होगी विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर और एटॉमिक मास। मॉलिकुलर एंड एटॉमिक मास इंक्रीज होने से ये 0 पॉइंट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेस हेवी मॉलिक्यूल एज सीन इन द फॉलोइंग सेशन। ओके, मतलब लेस हेवी मॉलिक्यूल्स, जो भी मतलब लाइट मॉलिक्यूल है, इसे हम लोग देखेंगे एज सीन इन द फॉलोइंग सेशन। द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड द 0 पॉइंट एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर और एटॉमिक मास। ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रेटर द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड हायर 0 पॉइंट एनर्जी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लाइटर मॉलिक्यूल और द एटम। ऐसे ओके, क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे, ग्रेटर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड हायर 0 पॉइंट एनर्जी आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ lighter molecules or atom, are the characteristics of lighter molecules or atom. The graphic below illustrated this, showing that because deuterium is a heavier than hydrogen, it has a lower 0 point energy. क्या कहा गया है, देखो, because deuterium is a heavier than hydrogen, okay, it has a lower 0 point energy. तो deuterium पता है heavier है ना हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन 1 and 1, deuterium 1 and 2 we can write. yes yes तो नेक्स्ट वन क्या दिया है, देखो ये ग्राफ इसके बाजू में दिया गया है, सीधा ग्राफ। यस, डेल्टा ई डी फॉर ड्यूटेरियम के लिए है। यस, एंड डेल्टा ई एच फॉर द हाइड्रोजन के लिए। यस, एंड सी हियर द 0 पॉइंट एनर्जी दैट इज द डेल्टा ई 0 डी जो है, तो क्या है 0 पॉइंट एनर्जी के लिए, और डेल्टा ई 0 एच जो है 0 पॉइंट एनर्जी हाइड्रोजन के लिए। ओके, सो हमने देखा था कि एज द मास नंबर इंक्रीजेस, ओके, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, द 0 पॉइंट एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, so see here the atomic mass number of deuterium is higher. Yes, so here 0 point energy is decreases and the mass number of the hydrogen is lower. Okay, and see the 0 point energy is here. Okay, yes, ये deuterium के लिए और ये हाइड्रोजन। Okay, yes, see the next point, as a result a bond dissociation energies for RD and RH are different. Yes, तो bond dissociation energy रहेगी जो भी RD and RH के लिए। Yes, are the different, क्या रहेगी ये डिफरेंट रहेगी। मतलब देखो जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और R के साथ, और जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के साथ। यस, सी these are the hydrogen and these are the deuterium, so these are the isotopes of each other ना, बराबर है क्या, आइसोटॉप है। सपोज दिस ग्रुप आर द सेम, दोनों ग्रुप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बिकॉज दिस टू ग्रुप आर सेम। कंसिडर सी दिस इज आर ग्रुप मीन्स दिस इज अ CH3 ग्रुप। ओके, सेम वे वी कैन राइट हियर CH3 D group. Okay, so here
द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, दैट इज हाइड्रोजन एंड CH3 का एंड हाइड्रोजन एंड डी का, ये जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंस रहेगी, क्या रहेगी, डिफरेंस रहेगी. ओके, सो सी हियर R bond H dissociation energy is lower than the RED. ओके, यस, मतलब क्या, ये जो है हाइड्रोजन के लिए वो क्या रहेगी, लोअर रहेगी, और इसके लिए हायर रहेगी, क्या रहेगी, हायर रहेगी. यस, D bond dissociation energy EH, different rate of reaction are the result of this change in the energy causes by isotopic replacement. यस, इसके वजह से तो आइसोटॉपिक रिप्लेसमेंट के लिए हो रहा है. दिस इफेक्ट इज क्वांटिफाइड बाय अ काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट. तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज अ काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट. व्हेन कन्वर्टिंग R to D द रिएक्शन रेट इज स्लोअर दैन व्हेन कन्वर्टिंग R to H. यस, मतलब देखो R का कन्वर्जन D में होते समय और R का कन्वर्जन H में होते समय देर लगने वाले. यस, सी दिस टेक अ मोर टाइम, yes, and this take a less time. Okay, क्या कहा गया देखो, yes, when the converting R to D the reaction rate is slower than the converting of R to H. Okay, so हम लोग बोल सकते हैं कि R H कन्वर्जन जब हो रहा है तो कम टाइम ले रहा है, और R D जब कन्वर्जन हो रहा है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है. It is a crucial to remember that isotope replacement has no effect on the molecular electronic structure or the potential energy surfaces of any reaction the molecule might experience. The only aspect that changes its reaction pace. Okay, reaction pace मतलब क्या, जो speed है वो खाली उसका change हो रहा है. Okay, they can be only change their speed. We can say it can be only change their speed. Okay, so see here the diagram is given. Yes, so we have the diagram like that. See, this is the increasing potential energy with the time. See, this is a reactant. Okay, and here the E0 are given, that means the 0 point energy. किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए. ओके, एंड E0D दैट इज अ 0 पॉइंट एनर्जी फॉर ड्यूटेरियम के लिए, एंड दिस आर द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और यहाँ पे EA दिया हुआ है, यहाँ पे EA दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है. ओके, तो सिंपली ये दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. तो क्या कहेंगे इसे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे. ये इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, हियर इज फॉर रिएक्टेंट एंड फॉर प्रोडक्ट. ओके, तो सी हियर अ पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस दैट इज अ PES. PES को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस एक्सप्रेस अ सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलरली दैट of a group of atoms in terms of specific characteristics. Okay, क्या कहा गया, in terms of specific characteristics. Okay, typically the atoms location, कहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, एटम की लोकेशन से. Okay, if there is a just one coordinate the surface is referred to as an energy profile or a potential energy curve. See, क्या कहा गया है यहाँ पे, if is just for the one coordinates, यदि वो वन कोऑर्डिनेट्स में, द सरफेस इज रेफर टू एज एन एनर्जी प्रोफाइल. क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एनर्जी प्रोफाइल बोलेंगे, और द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और इसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व. यस, द सरफेस में बी स्पेसिफाई द एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो इसका डायग्राम यहाँ पे दिया है, देखो. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट देन वी हैव टू टेक द 3 एक्सिस. क्या लेना है हमें, 3 एक्सिस लेना है. तो उसमें से एक रहेगा हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. क्लियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस, यू कैन से दैट. ओके, एंड द डायग्राम इज गिवन लाइक हियर.
ओके, तो यहाँ पे दिया है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, क्या दिया है, पी एस, ये जो दिया हुआ है इसे हम लोग बोलेंगे पी एस, so it is like that. Okay, so see here we have a total q2, that is the HOH band angle. Here is the angle they are given here. Okay, q1 bond angle in nanometer, and here is the energy. Okay, so we have to see what is the actual explanation. Yes, see here it is instructive to think of a system with a 2 degrees of freedom. क्या क्या है यहाँ पे, 2 degrees of freedom को हम लोग देखने वाले. फॉर एग्जाम्पल 2 bond length. Yes, as a landscape the value of energy analogy the height of the land is a function of the 2 bond length. Okay, क्या है, it is a function of 2 bond length. तो यहाँ पे दिया है देखो 2 bond length, तो पहला bond length दिया है q1. Yes, and the second one bond length is a q2. second one bond length क्या दिया है, that is a q2. क्या दिया है, q2. Yes, the PS, that is potential energy surfaces, is a molecule's energy that depend on the location of its nuclei. Okay, ये क्या रहता है एक्चुअली, so the energy that depend on, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, that depend on the locations of its nuclei. Okay, क्या कहा है देखो यहाँ पे, the PS is a molecular's energy that depends on the location of its nuclei. The energy of a system composed of 2 atoms is dependent on their separation. Yes, see क्या कहा गया है, the energy of a system composed of 2 atoms is dependent on their separation. किसके ऊपर डिपेंड रहने वाले, on their separation. There is a no interaction when the energy is a 0 at a distance. क्या कहा गया है देखो, देर इज अ नो इंटरेक्शन, यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है जब डिस्टेंस क्या है, व्हेन एनर्जी इज 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू एटॉमिक डायमीटर और मोर, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रीडोमिनेट. क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रहेगी वो क्या करेगी, प्रीडोमिनेट कहेगी. यस, एट एक्सट्रीमली नियर रेंजेस द फोर्स इज अ रिपल्सिव. सी क्या कहा गया देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू एटॉमिक डायमीटर और मोर, यदि ये फ्यू एटॉमिक डायमीटर है उससे ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट रहेगी. एट एक्सट्रीमली नियर रेंजेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा पास में रहेगी. द फोर्सेस इज अ रिपल्सिव, फोर्सेस को क्या रहेगी, रिपल्सिव रहेगी. यस, विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन एनर्जी, उससे क्या होगा, इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा. एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस कर्व द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्सिवनेस आर इक्वल. Okay, effect of attraction और effect of repulsiveness are equal. Yes, ये पॉइंट पे क्या रहेगा, effect of attractiveness और effect of repulsiveness both are the equal. क्या रहेंगे, दोनों equal रहेगी. Yes, plot that depict this relationship are very helpful in characterizing certain chemical bond characteristics. Okay, so see here. Okay, द बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. सी है, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे Q1 एंड Q2, तो Q1 है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इन नैनोमीटर, यहाँ पे Q2 है बॉन्ड लेंथ इन बॉन्ड एंगल. यस, दैट इज 104.5 डिग्री. यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दी हुई है, दैट इज 0.0958 नैनोमीटर, और यहाँ पे एनर्जी दी हुई. ओके, देन आगे क्या दिया है देखो, द बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच द पोटेंशियल एनर्जी इज द मिनिमम ऑक्यूर. बॉन्ड लेंथ हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, तो क्या कहा है देखो यहाँ पे, द बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. कहाँ से हम लोग डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से. एट विच द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ऑक्यूर, एट विच द पोटेंशियल एनर्जी minimum occur since 2 atoms vibrate approximately this distance due to thermal motion. Okay, किसकी वजह से हो रहा है, due to the thermal motion. thermal मतलब हीट के वजह से हम लोग बोल सकते हैं. Okay, due to the thermal motion this is a more appropriate known as the equilibrium bond length. Okay, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, equilibrium bond length कहेंगे. In a general the bond length will be a shorter and stronger the relationship. Okay, क्या बोलेंगे, the bond length will be shorter, bond length रहेगी वो shorter रहेगी, the stronger the relationship, relationship क्या रहेगी उसमें,
स्ट्रांग रहेगी। यस, so these are the all about the पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस। यस, तो ये क्या था, हमने जो अभी पॉइंट क्लियर किया हो उसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस। यस, दैट इज़ अ PES। ओके, तो ये अभी हमने पॉइंट जो कवर किया इसे हम लोग कहेंगे PES। तो ये पूरा इक्वेशन जो है, इक्वेशन तो ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आपको ये दिखना पड़ेगा, डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा एक, और इफ़ देयर आर देन यू हैव टू ड्रॉ दिस आल्सो। ओके, इफ़ यू आर रीड 1 and 2 टाइम इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो आप आराम से वो समझ पाओगे। ओके, यस, सी अब यहाँ पे जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसे देखने, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल आपको करने हैं। एक्सप्लेन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन के टर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन करो, इधर आंसर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द ब्रॉन्स्टेड-बर्ज़ियम इक्वेशन फॉर द प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट के लिए क्या है वो एक्सप्लेन करो। ओके, ये देखो जैसे कि जैसा ही पूरा उन्होंने दिया है यहाँ पे। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एयरलिंग, पोराइनी एंड इवन पोस्टुलेट फॉर द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ओके, देन व्हाट इज द काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, दैट इज द KIE, ये भी हमने देखा है। ओके, एंड दिस इज द समरी ऑफ द यूनिट। ओके, समरी में देखो क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एक्सप्लेन द रेट ऑफ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। यस, थ्योरी सजेस्ट दैट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दैट इज द AC को बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ट्रांजिशन स्टेट इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे TS, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन के ड्यूरिंग ये फॉर्म हो रहा है। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज रिगार्ड एज अ सेपरेट एंटिटी एंड इट इज़ ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एंड इट इज़ ऑलवेज इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ ये हमेशा क्या है, इक्विलिब्रियम में रहता है। इस नेक्स्ट वन, द एक्टिवेशन एनर्जी EA ऑफ द रिएक्शन इज एडिशनल एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्वायर टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या रहेगी, एडिशनल एनर्जी रहेगी। ओके, क्या है देखो, द एक्टिवेशन एनर्जी ये ऑफ द रिएक्शन इज द एडिशनल एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्वायर टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। यस, ब्रॉन्स्टेड-बर्ज़ियम इक्वेशन गिवन एज log K1 which is equal to log K0 plus log FA/FB divided by Fx0. The rate of reaction can be altered by the presence of non-reacting or inert ionic species. क्या दिया है देखो, the rate of reaction can be altered by presence of a non-reacting or a inert ionic species. क्या है, the rate of reaction can be altered by the presence of non-reacting or inert ionic species, non-reacting या फिर inert ionic species के साथ in the solution that is described by the primary salt effect and the secondary salt effect. And next one, potential energy surfaces is essential for the comprehending the causes and the mechanism of isotopic effect. Okay, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे अपना जो यूनिट था यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे देन जो है काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इसे हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुक